Okay, so wishing all of you a very good morning again. Welcomes you all in the class of the financial management. So friends, let's start with what we had started with last time around. So I'll just brief it out to you that what concepts we have already gone through in time value of money. So we know that what is this process of compounding and discounting is. We have come to know that how we can find the future value of single cash flow. We have also come to know the meaning of annuity. If the amount of investment is remaining same for many number of periods for which we are going to make the series of transactions, and the time horizon between the two successive cash outflows and inflows are remaining same, then it can also be called as annuity. We have come to know the formula of both of this. Sir, ordinary annuity क्या है मालूम है, annuity due क्या है वो भी मालूम है. तो इस बार जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफर्ड एन्युटी. अब कई बार आपने सुना होगा कि सर ये जो इंश्योरेंस प्लान है ना उसमें आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, 5 साल के बाद इन्वेस्ट करना है, आपको कुछ साल के बाद कुछ पैसे मिलेंगे, तो अभी से आपको सिर्फ वहां पे कुछ लमसम अमाउंट देने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका शुरू होगा 5 साल के बाद, अभी कुछ नहीं शुरू हो रहा है. सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस टुडे. ऐसे इंश्योरेंस में भी प्लान होते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स की कुछ एसआईपी में भी प्लान होते हैं, ऐसे कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम्स भी होती है पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, जहां पे ऐसे प्लान्स होते हैं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट अभी शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अभी से रजिस्टर कर देना है. इन्वेस्टमेंट आप शुरू करोगे कुछ नंबर ऑफ इयर्स के बाद, तो उसे कहते हैं डेफर्ड एन्युटी. नथिंग टू बी वरीड अबाउट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी aspect of it. Let's go to the Excel file. So friends, in this deferred annuity, if I give you one more simple example, say you want to know the future value after 10 years. You will start investing, say from the 6th year, and that will be 10,000. You will also invest in 7th year, 8th year, 9th year and 10th year. But this 10,000 rupees will start from 6th year onwards. So this first 5 years are going empty. In that you are not investing anything in fact. Now this initial 5 years where you are not investing anything, that is called as the deferment period. What do we call it? Deferment period. Now this entire annuity is also called as delayed annuity. Some people refers it as delayed annuity, some people refers it as deferred annuity. लेकिन दोनों एक ही है. तुम विराट कोहली बोलो कि चीकू बोलो, दोनों वन एंड द सेम है, राइट? तो सर इसमें एक ही कैलकुलेशन में चेंज होगा, विच इज अगेन अ वेरी माइनर चेंज. ये आपको ध्यान में एकदम बैक ऑफ द माइंड फिट कर देना है कि वॉट एवर इज द डेफरमेंट पीरियड इज, नो उसको क्या बोलो, अड़ा सावन की गड़ा चल बत्ती बुझा पतली गली से निकल, पतली गली से निकल, उसको मारना है इग्नोर. जस्ट इग्नोर द डेफरमेंट पीरियड इन द कैलकुलेशन. So you have got 10 years, you want to know the future value after 10 years. And sir, obviously, you get the compounding benefits only from a period you are starting the investment. तो आपको 6 साल के बाद वाला ही कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. ये भी कोई समझाने की बात हुई क्या? पहले 5 साल के लिए आपको बीकेटी मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलेगा. सो दैट पीरियड शुड बी इग्नोर्ड स्ट्रेट अवे. This is only a minor modification we are making into a formula of annuity due or the ordinary annuity. Deferment period है ना भैया, उसको सिर्फ इग्नोर मारो, बस इतना सा करना है. चलो जाते हैं पहले एग्जांपल में, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. Let's take a snap of these 2 questions. तो आप ये 2 क्वेश्चन के स्नैप ले सकते हो. All the videos as I committed are uploaded in the YouTube. You may refer that. In some of the videos, I can
आई कैन अंडरस्टैंड द वॉइस वॉज ग्लिचिंग अलॉट, तो मैंने कुछ और रिप्लेसमेंट भी डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो भैया। कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप बता दीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। ये दूसरा बोलेगा कि मेरी तो बारी हर बार दूसरी आती है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, रो मत, तेरी बारी है ना, मैं पहले लेता हूं इस बार। सो सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर धोनी will start investing 1 crore at the end of every 6 months, starting from the end of 5th year at 15% expected rate of return per annum. What fund he will have after 12 years? तो भैया 12 साल के बाद उनके पास कितने पैसे होंगे ये देखना है। और धोनी भाई साहब इन्वेस्टमेंट कब शुरू करते हैं? इन्वेस्टमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो 5वां साल है ना, उसे एंड में शुरू करेंगे। हर 6-6 महीने 6-6 महीने 6-6 महीने 1-1 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए वो डालते रहेंगे। तो जितना उससे पहले वाला समझ चला गया ना, उसको क्या करना है, इग्नोर करना है कैलकुलेशन में। उसको कहीं पे ध्यान में ही नहीं लेना भैया, उसको मारो इग्नोर। उसको बोलो कि तेरी कोई जरूरत नहीं है। So this seems to be, you know, a sort of a retirement planning of Mr. Dhoni after retiring from a cricket. So let's draw the timeline. This is how it looks like. So there are 12 years which are completing over here, and we want to know the future value at this point of time. But then there comes a 5 years. At the end of the 5th year, he is investing something. यहाँ पे invest कर रहे हैं भाई साहब, चलो वो देखेंगे। Now this investment is going to be 6 monthly in nature, right? So here comes a period of 7 years, क्योंकि 5 तो चले गए, तो इसके बाद कितने साल रहते हैं? 7 years. अब 7 years में हर एक साल में 2-2 कटके होंगे। क्यों 2-2 कटके? Because the investment is going to be 6 monthly in nature. So 1 crore in the first 6 months, another crore in another 6 months. And that will happen for 7 number of years. लेकिन एक चीज और भी है कि आपका जो लास्ट वाला ईयर है ना, विच इज अ 5th ईयर, उसके एंड में भी धोनी भाई साहब कुछ कर रहे हैं इन्वेस्ट। तो समझ लो यहां से आपका 4th ईयर शुरू हुआ। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन सो दैट यू विल बी एबल टू गेट इट इन अ बेटर वे। तो आपका ये है 4th ईयर, तो ये जो बीच वाला कटका है ना, वो पहले 6 मंथ है, दूसरे वाले है वो दूसरे 6 मंथ है। तो दूसरे 6 मंथ के एंड में भी वो जमा कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए। वहां से वो शुरू कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स धोनी जो इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, वो कितने टाइम्स हो गए समझने की कोशिश करो। एक तो 7 साल, और उसमें हर एक साल में 2-2 6 महीने आएंगे, तो आपने 14 नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेस्ट करना है। सिर्फ उतना नहीं, आपका जो 5वां साल है ना, 5वां साल भैया, 5वां, अच्छा 4था है कि 5वां है, 1 मिनट रुको। अच्छा 5वां, सॉरी 5वां, ये 4था नहीं, 5वें साल के एंड में कर रहे हैं। तो 5वें साल के एंड में सर कर रहे हैं, तो वो वाला भी एक पीरियड गिना जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मिस्टर धोनी इज इन्वेस्टिंग इज 15। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 5वें साल का एंड वाला जो 1 करोड़ रुपए है वो, और आने वाले 7 साल, और 7 साल में 6-6 महीने 6-6 महीने 14 बार आते हैं, तो 14 बार प्लस 1 बार मतलब 15 नंबर ऑफ टाइम्स मिस्टर धोनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट। इज इट क्लियर? यहाँ पे कुछ भी डाउट है? इफ समवन वांट्स टू से मी समथिंग। नो सर, इट्स क्लियर। एकदम पक्का लॉक कर दिया जाए भैया। यहाँ पे 15 तो बहुत सारे लोगों ने बता भी दिया था। वेरी नाइस मिस्टर सोहम, मिस्टर वत्सल। क्योंकि कई बार है ना वो ट्रिक क्वेश्चन थे, तो अपन फिर उसमें वो बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, तो एंड ऑफ द 5th ईयर है उसको भी गिनना पड़ेगा ना। नाउ वेदर इट इज एट द एंड ऑफ द 5th ईयर और इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर, दैट विल जस्ट चेंज द टाइप ऑफ एन्युटी, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स तो उतने ही रहेंगे एन। अगर बिगिनिंग में होता तो हम उसको एन्युटी ड्यू कहते। तो आपका 5वां साल है ना, तो 5वां साल का जो सेकेंड हाफ है, उसमें समझ लो कि सेकेंड हाफ के एकदम शुरू में बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर दिया, तो हम उसको एन्युटी ड्यू कहते हैं। लेकिन वो 5वें साल का जो सेकेंड हाफ है,
उसमें एंड में कर रहा है इन्वेस्ट, तो हम उसको ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। तो दैट इज जस्ट मेकिंग अ डिफरेंस ऑफ एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी। नंबर ऑफ पीरियड्स में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो एक तो 7 साल हुए और 5वें साल का एंड, तो आपने 15 टाइम्स इन्वेस्ट किया, तो चलो भैया उतना का ही आपको कैलकुलेशन मिलेगा, बाकी सबके लिए आपको मिलेगा BKT। BKT बाबा जी का चुल्लू। सो द फॉर्मूला लुक्स लाइक FV इक्वल्स टू I in bracket 1 plus R raised to N minus 1 divided by R। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन ऑन राइटर नोट। बेटा आपको ये रेड है, कोई बताओगे? ये जो मैं कलर इंक यूज करता हूं, तो रेड अच्छी तरीके से आई प्लीजिंग लगता है कि ब्लैक? रेड अच्छा सर। रेड, रेड सर। ठीक है कोई बात नहीं, रेड यूज करते हैं, कोई तो रेड यूज करते हैं, अपन को क्या प्रॉब्लम है। चलो बढ़ते हैं आगे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, धोनी भाई साहब 1-1 करोड़ रुपए करना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए लिख डालो। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट इज द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी कॉल्ड एज एन्युटी टू। सो 1 प्लस आर। अच्छा कौन बताएगा आर के साथ क्या छेड़छानी करनी है, बताओ? डिवाइडेड बाय 2। Very nice. Divided by 2 because there comes 2 6 months in a year. तो आपको R को नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर से डिवाइड करना है, N को नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ ईयर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमने N ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। So 0.15 divided by 2 and total number of times Mr. Dhoni is investing is 15. We have already come to know that, right? So just putting 15 straight away over there. Minus 1 to be divided by 0.15 divided by 2. So equals to 1 crore. Let me simplify this further. So it will be 1.075 raised to 15 minus 1 to be divided by 0.075. So equals to 1 crore. Now let's find 1.075 raised to 2.9588. 2.9588। ओके, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो उसके 5-5 के 3 कट के कर सकते हैं, 1 10 का 1 5 का कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली 15 भी कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेटर में। 1.075 multiplied by 1.075, press equal to and press that equal to 13 more number of times. So total you will press 14 number of times equal to in your calculator. So that will be 2.9588 minus 1 to be divided by 0.075. Let's move further. So equal to 1 crore. 1.9588 to be divided by 0.075 as per the Bagu-Sabba Bodmas theorem, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन भैया। तो क्या आता है ये ब्रैकेट? 26.1173। 1173। तो सर वो हो जाता है अपने 26 करोड़ 11,73,000। So that's gonna be the future value at the end of 12th year। सिर्फ एक ही चीज करनी है कि डिफरमेंट पीरियड को करना है इग्नोर। अगर तुम इन्वेस्ट करोगे नहीं तो उसके कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के समय पे तुम डेफरमेंट पीरियड को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस समय पे डेफर्ड एन्युटी के फॉर्मूलास कुछ अलग रहेंगे, वो देखेंगे बाद में, जब आएंगे तब देखा जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। 1 विल बी लाइक यार हमारे साथ तो धोखा हो गया, पहले 1 बोल दिया और फिर ले रहे हैं दूसरा। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट कॉपी दिस एट द डाउन साइड। होने चाहिए धोखे, धोखे होते हैं ना उसके बाद ही तो अकल आती है।
At 6 months interval, please read the question carefully. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आधा काम तो उधर ही सॉर्ट आउट हो जाता है. At 6 months interval, Mr. Don deposits 10,000 rupees in a savings bank account. ये डॉन भाई साहब 10,000 रुपए 6 महीने में डालेंगे. कहाँ के डॉन हो? चिंच पोकली के, नाला सोपारा के चप्पल चुराने वाले डॉन हो गए शायद ये. चलो कोई बात नहीं, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन पे कमेंट नहीं करते. Which credits the interest at the rate of 8% per annum compounded semi-annually. तो 8% के रेट के हिसाब से वो आपको इंटरेस्ट देने वाला है 6 महीने के कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी में. The first deposit was made when Don's son, छोटा डॉन, was 6 years old, and last deposit was made when his son was 21 years old. तो जब वो छोटा डॉन 6 साल का था तब से लेके अपन वो जब 21 साल का हुआ तब तक हमने पैसे जमा करवाए हैं उसमें. कितने? 10-10 हजार, 10-10 हजार, 10-10 हजार. कितने इंटरवल में? 6 महीने के इंटरवल में. लेकिन यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, कहानी और आगे जाती है. The money remained in his account and was presented to his son on 25th birthday. तो 21 साल के बाद भी 4 साल तक वो पैसे उधर के उधर ही रहे अकाउंट में. तो बेटा उधर के उधर ही रहेंगे तो आइडल तो नहीं रहेंगे, उसके ऊपर कुछ और इंटरेस्ट मिलेगा. चलो देखते हैं क्या है. How much did Mr. Chota Don receive at the end of 25th year? So this is how the timeline looks like. Try to understand the timeline. So say this is the end of 25th year. शुरू का ईयर है जो डेफरमेंट ईयर, जब डॉन भाई साहब कुछ जमा नहीं करवा रहे हैं, वो है 6 years का. एट द एंड ऑफ द 6th year अपन इन्वेस्ट करते हैं. दिस वन इज ऑल्सो सेमी एन्युअल. तो यहां तक समझ लो 6 साल आते हैं. तो ये हो गया 5 से लेके 6वां साल. सो दिस वन इज 6th year, राइट? दिस इज द एंड ऑफ 6th year. तो ये जो आपका एरो किया ना वो हो गया 6th year. अब 6th year के 2 कटके होंगे 6 महीने के, बिकॉज दिस कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी इज अगेन सेमी एन्युअल. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट. सर अगर उसके 2 कटके हुए तो दूसरे वाले जो 6 महीने है ना 6 year ओल्ड, उस समय पे भी एक इन्वेस्टमेंट तो हुआ है 10,000 का. चलो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. तब से लेके 21 साल तक यहाँ पे समझ लो एट द एंड ऑफ 21st year है. एंड ऑफ 21st year तब तक 10-10 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, 10-10-10-10 जमा हो रहे हैं 6 मंथली बेसिस पे. 10,000 ऑन एवरी 6 month. Then for this 4 year the money will remain invested, which will also get a compounding return. So what we'll do is we will find the amount of annuity first of all till 21st year, because till 21st year it is an annuity. 10-10 हजार रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो 21 साल तक तो वो एन्यूटी है. उसके बाद में that fund will be transferred to say in one bank account and that will also get 8% return compounded semi-annually. So then it will be converted into a single cash flow question. लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी 21वीं साल का मालूम होना जरूरी है. तो 21 साल के बाद हमारे पास एन्यूटी का फ्यूचर वैल्यू क्या है, चलो पहले वो फाइंड करते हैं. अब नंबर ऑफ पीरियड्स एन्यूटी में कितने होंगे कोई बताएगा? चलो कौन है हमारे क्लास का बाजीराव सिंघम? 31 सर. यार कोई लोग तो रौनक सर के प्रॉपर्टी कर देते हैं, तुरंत आंसर दे देते. बोलो 31, मतलब मेरे को किसी और को पूछने का ही नहीं. बाकी सब भी बताइए कितना आएगा? 31. अच्छा ध्रुवी भी बोल रही है 31, वत्सल भाई साहब भी बोल रहे हैं 31.
चलो जो लोग 31 बोल रहे हैं ना, उसके लिए अपन एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड पे चैट बॉक्स में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसमें एक इमोजी का ऑप्शन आता है और उस इमोजी के ऑप्शन में अपन सर्च करेंगे क्लैप्स वाले इमोजी, लेकिन कहीं पे भी मिल नहीं रहे। हाँ, मिल गए, क्लैपिंग हैंड्स। तो मैंने ये क्लैपिंग हैंड वाले इमोजी को सिलेक्ट किया और उनको भेज दिया। अब ये 31 है ना, वो राइट आंसर है। जिनको नहीं समझ में आया वो फिर से देखें। बेटा आपका जो 6 साल खत्म होने पे है, वहां से लेके 21 साल तक 6 महीने में आप इन्वेस्ट करते हो, तो 21 में से 6 गए तो कितने साल हुए? 15 साल। तो 15 साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 30 बार 6 महीने आते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2। लेकिन एक वाले 10,000 जो आपके 6th ईयर के एंड में भी करते हो ना इन्वेस्ट, तो वो भी गिना जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मिस्टर डोन इज गोइंग टू इन्वेस्ट विल बी 31 टाइम्स 10,000 10,000 10,000। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 30 + 1, 21 में से 6 को लेस किया तो 15 है, तो उसमें से 30, और एक एंड वाला जो है वो 6th ईयर के एंड वाला। तो अपन के टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं 31 फॉर एन्युटी। सो लेट्स go to the formula straight away. Fv equals to I in bracket 1 plus R raised to n minus 1 divided by R। तो जो ब्लैक का बोल रहे थे उनके लिए ब्लैक भी ले लिया पेन। चलो, किसी को दुख नहीं होना चाहिए भैया। जाते हैं 10,000 रुपए। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 10,000। 1 plus R, R के साथ क्या छेड़छानी करनी है बताइए? डिवाइडेड बाई 2। by 2. वेरी नाइस, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 6 मंथली है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 8% को डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 0.08 डिवाइडेड बाई 2। एन तो अपन ने फाइंड कर ही लिया है 31। फिर आएगा -1 टू बी डिवाइडेड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 2 अगेन। सो इक्वल्स टू 10,000 in bracket 1 plus 0.04 raised to 31 minus 1 divided by 0.04। अब तो हलवा है भैया, हलवा। 10,000 रुपए 1.04 raised to 31 minus 1 divided by 0.04। अच्छा, there is one request that is slightly off the track. Friends, whenever I am joining the session, no, if someone joins the session before me, then I don't get the recording rights for that session. So that's my humble request, that you should join the session only after I give the instruction in the Google Classroom or in a WhatsApp group. तो मैं एक बार बताऊं ना कि बेटा अब आप ज्वाइन हो सकते हो, उसके बाद में ज्वाइन करना, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि वो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है ना, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, फिर वो किसी और के पास रिकॉर्डिंग जाएगा। तो फिर मुझे फिर से आपको लिंक भेजना पड़ता है नया वाला गूगल मीट क्रिएट करके, तो उसमें 4-5 मिनट 6 मिनट चले जाते हैं। तो प्लीज फॉलो दिस प्रैक्टिस एंड इन्फॉर्म इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल, दैट प्लीज ज्वाइन ओनली आफ्टर आई गिव द इंस्ट्रक्शन इन दी चैट बॉक्स। चैट बॉक्स नहीं सर, व्हाट्सएप चैट। ओके ठीक है। तो 1.04 रेज टू 31 फाइंड करते हैं 10,000 सर। 3.3731। 3.3731। अदर्स में जस्ट क्रॉस वेरीफाई दिस। अब 10-10 के 3 कट के करो, 15 के 2 करो और 1 को बाजू में रखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 डिवाइडेड बाई 0.04, 3.3731। रिया मैडम का भी वही आंसर आ रहा है, तो चलो भाई सही होगा। तो इक्वल्स टू 10,000 in numerator we will have 2.3731 to be divided by 0.04 as per the Bodmer's theorem. Again first will be division and then there will be a multiplication. So 10,000 multiplied by something, who will tell me?
59.3275. 59.32. 59.3 275. 283. 3283. 3283. 3275. 3275. 75. Yes, sir. 3275. 3275 है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बताइए। 59.3275. ओके, 59.3275। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो कुछ आएगा, कितना आएगा बताइए। 5,93,275. Okay, very nice. So that's gonna be my future value at 21st year. लेकिन हमारी अधूरी कहानी खत्म नहीं हुई, तो बड़ा पछताओगे। सर क्यों? क्योंकि 21वें साल के बाद ये जो पैसे आपके इकट्ठा हो गए, उस पैसे को तुम 4 साल के लिए और वहां पे इन्वेस्टेड रखोगे। Yes, you are stopping your investments. Now you are not making any fresh investments, but whatever the money which is already been gathered will also get some return, right? So now this money will be remaining over there for 4 years and it will get 8% return compounded semi-annually for 4 more number of years. So I'm finding FV at 25th year equals to, अपन जो सिंगल कैश फ्लो की ट्रांजैक्शन में पीवी रखते थे ना, उस पीवी की जगह पे FV at 21st year लिख देता हूं। FV at 21st year multiplied by 1 plus R raised to n. So it is basically the single cash flow transaction formula. ऐसा समझ लो कि आपने 593,273 21वीं साल में जमा करवाए और उसके ऊपर 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा। सो 593,275 मल्टीप्लाइड बाय आर के साथ छेड़छानी करनी है, वो भूल नहीं जाना है, क्योंकि अभी भी नेचर ऑफ कंपाउंडिंग को भूलना नहीं है। That's gonna be anyway 6 monthly only, because nothing is stated that after 21st year what will be a compounding frequency. So we assume that whatever was the compounding frequency till this point of time will carry forward for further 4 years too. So 1 plus R 0.08 divided by 2 and n will be, can someone tell me what will be n? 8. वेरी नाइस, क्योंकि सिर्फ 4 साल का ही इंटरेस्ट मिलेगा। कोई लोग क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे 25 लिया है ना, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50 कर देंगे। बताओ अब मैं कहाँ पे रखने जाऊँ ऐसे नमूनों को। नहीं, वो बेचारे सही है, बहुत सारी चीजें उन्होंने सही की होती है, लेकिन 25 नहीं, अपन का 21st ईयर का तो फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है। तो अब जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा ना, वो सिर्फ 4 साल के लिए होगा, और 4 साल में 6 महीने कितने बार आते हैं? 8 बार, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 593,275 मल्टीप्लाइड बाय 1.04 raised to 8. So 593,275 multiplied by the compounding factor. What do we get the factor? Can someone tell me? 1.3685. 1.3685. Good. So multiply that with this one. So FV at the end of 25th year will be multiplication of these two. 8,11,896. 896. So that's gonna be the amount that Mr. Chota Don. Consider it. ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल करना हो तो कर लेना। 0.83. ठीक है, चलो पॉइंट लिख देते हैं, 0.83। So this is a money which Mr. Chota Don will receive at 25th year. Let's have the rapid fire quick revision of entire timeline. So initial
5 years and 6 months are ignored from the calculations. The second half of the 6th year is taken into consideration because at that time, at the end of that period, the amount is getting invested, 10,000. Then from the end of the 6th year, in fact, from the beginning of the 7th year to the 21st year, we will invest 10,000, 10,000, 10,000 at the end of every 6 months. So we will invest total number of 31 times. And then this money will be kept in a deposit for further 4 years. So from there, we have applied the formula of compounding of single cash flow. But before that, we were supposed to reach to FV at 21st year. And that will again fetch the interest of 4 more number of years, as I've already stated. So this is how the deferred annuity looks like. Sir, जितना complicated समझ रहे थे उतना तो कुछ है नहीं. वही annuity वगैरह की formula use करनी है, वही single flow cash वाली formula use करनी है. तो ठीक है भैया, ऐसा ही होता है. Conceptually अगर पहले समझ में आ जाए ना तो फिर बहुत सारी चीजें easy हो जाती है. तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो, एन्यूटी नहीं समझ में आई हो, डेफर्ड एन्यूटी नहीं समझ में आई हो, क्वेश्चंस में कुछ क्लियर डाउट आपको क्लैरिटी चाहिए, कंफर्मेशन थ्रू द चैट बॉक्स प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. रिसीव द confirmation from many students. Very nice. I appreciate the doubts, irrespective of how silly the doubts are. कोई भी टेंशन नहीं लेना है, पूछने से पहले शर्माना तो बिल्कुल नहीं है भैया. If you ask the doubt, you may be a fool for a one time. If you don't ask it, you will remain fool for the lifetime. So you decide for the lifetime or for one time. Anyway, so these are the 2 questions of deferred annuity. In the next session, we will explore the future value of differential cash flows. Now, I must appreciate this batch. These 2 questions took somewhere around 45 minutes in batch A. They are completed just in 33-34 minutes in batch 2. That means student didn't get any queries or questions as I got in the first batch. Possibly my explanation would have been better in the second one, because एक बार आप जो चीज एक्सप्लेन करते हो दूसरी बार करते हो तो थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाता है. Anyway, whatever the case it may be, but दूसरे वाले में comparatively बहुत कम टाइम लगा. So we will go to the future value of differential cash flows in the next session. Okay, so please put your enrollment number. Sir, semi compounded means semi annual compounded. बेटा semi compounded नहीं, semi annual compounded. मतलब कि दर 6 महीने में compounding हो रहा है. Good. So please put your enrollment number as a mark of your attendance. See you all again in the next session with utmost of energy and enthusiasm. Bye bye. Take care. I'm here for next 5-10 minutes if you have any queries or something to say to me. And if you want to say something to me off the records, then I'll be stopping the recording too. Nothing to be worried about. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Those who want to leave may leave. Those who want to remain and ask something, I'm here for 5 more minutes. कोई लोगों को कॉपी करके पेस्ट करते हैं ना, तो पेस्ट में वी प्रेस कर देते हैं. बोलो तो चैट बॉक्स में भी वी आता है. जीत भाई का क्वेश्चन था. जीत, इज इट क्लियर? जीत शाह. यस सर. पक्का ना? यस सर. ठीक है, वेरी नाइस.
Okay, Thank you, anyone sir. want to say something? Thank you, Mr. Soham. If anyone want to say something, they can. Any doubt, any query? Sir, can you please repeat the last question, if you don't mind? Repeat means the how the calculation took place. Yes, sir. Okay, fine. See, friend, in last question, this is how the timeline is looking like. Up to 6th year, only in the second half of the 6th year, one investment of 10,000 is taking place. So basically the annuity is starting from the second half of the 6th year to 21st year. 10,000, 10,000 on a 6 monthly basis you are investing. So what you will do, you will find first the future value at the end of 21st year. Then whatever the money is gathered till this 21st year, no, will be kept in an account for 4 more number of years, because we want to present it to Mr. Chota Don at 25th birthday. So 4 years more from 21st birthday. So whatever the deferment period is coming, no, that is ignored. That is not taken anywhere in the calculation. डेफरमेंट पीरियड की जब आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे हो तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. तो सर आपके जो नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे ना एन्यूटी में वो 31 हो गए. क्यों? क्योंकि आपका जो 6 साल खत्म हुए तब से लेके 21 साल तक एन्यूटी रहती है. तो 21 में से 6 मतलब कि 15 साल हुए. 15 साल में हर साल 2-2 6 महीने आते हैं. तो आपके 30 बार 6 महीने आए. दैट इज योर नंबर ऑफ पीरियड्स. Plus 1 because you are also investing at the end of the 6th year. So number of periods, total number of times you will invest will be 30 plus 1 will be 31. So that will be the period of annuity in which you will invest 10,000, 10,000, 10,000. So once you get the future value of annuity, then you apply the formula of single cash flow. That means whatever the money is gathered will further fetch the interest of 8% semi-annually compounded for 4 more number of years. तो वो पैसा जो हमें मिला 21वें साल में उसको फिर से इन्वेस्ट किया. 1 plus r raised to n is multiplied. r is divided by 2, n is multiplied by 2. n मतलब कि number of years are multiplied by 2 and rate of return is divided by 2. Why? Because the compounding frequency is semi-annually. So if you do this, so future value at the end of the 25th year is coming somewhere near to 8,11,000. Is it clear? Yes, sir. Okay, thank you so much. Thank you, sir. Okay, take care.